بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایشیا کا پہلا جوڈیشل ٹاور ملتان میں بنے گا۔ کچہری میں 11 منزلہ جوڈیشل ٹاور کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی نوید دے دی۔ ملتان کچہری میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کا شاعرانہ خطاب، قطعی شفاء کے اشعار بھی تقریر کی زینت بنائے۔ ضلع کچہری میں مختلف منصوبوں کے سنگ بنیاد کے افتتاح کے موقع پر چیف جسٹس محمد قاسم خان نے خطاب کیا۔ انہوں نے بار کے ساتھ گزارے وقت کا خصوصی ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے ضلع کچہری کی توسیع بارے کاوشوں کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ اسی بار نے مجھے عزت دی اور میں اس بار کا جنرل سیکرٹری رہا۔ یہیں سے میں نے وکالت کی ابتدا کی، یہیں سے میں نے کچھ قانون کی منہ شگافیاں سیکھیں جو زندگی کے سفر میں میرے ہمیشہ کام آتی رہی۔ کہا کہ ضلع کچہری کی توسیع کسی ادارے کی ہار نہیں ہوئی، توسیع سے سب کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ضلع کچہری کی 11 منزلہ عمارت مثالی ہوگی، عدالتیں وسعت کے حساب سے ہوں گی، ایک فلور پر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کا کھلا ماحول ہوگا۔ میں اکیلا کچھ نہیں تھا، میرے بردر ججز میری طاقت تھے، جو آپ کی آواز تھے، اور ہم نے ادارے کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا کام ان پسے ہوئے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے جو اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وکلا کے ذریعے عدالتوں میں اپنے ان حقوق کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے مشکور ہیں جن کی کاوشوں سے وکلا کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نئے بلاک کا نام محمد قاسم خان بلاک رکھا جائے گا۔ کہ اس کمپلیکس کی جو سٹی جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے اس پہ آپ کی کاوش ہے، اور ملتان بار کی یہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم اس جوڈیشل کمپلیکس کا نام آپ کے نام کے ساتھ محمد قاسم خان کمپلیکس رکھیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس کے ہمراہ جسٹس محمد امیر بٹی، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس طارق سلیم شیخ، رجسٹرار ملک مشتاق اوجلا، سیکرٹری لا بہادر علی خان، ناظم خان جاوید اقبال اوجلا سمیت دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ مظفر گڑھ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا وکلاء کے سالانہ عشائیے سے خطاب۔ کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے پورا کیا جائے۔ مظفر گڑھ پہنچنے پر ڈی سی اور ڈی پی او نے ان کا استقبال کیا۔ نئے جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہاؤس مظفر گڑھ میں وکلاء کی سالانہ عشائیے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم نے کہا ہے کہ کورونا کے باوجود پنجاب کی عدلیہ نے پچھلے سال کی نسبت 3.25 لاکھ زیادہ کیسز کے فیصلے کیے۔ عدلیہ اور وکلاء کو انصاف کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اس معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کے ذریعے وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ کی اور ہماری یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے مظفر گڑھ جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد اور بار روم کی تزئین و آرائش کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث زیر التوا مزید کیسز کے فیصلے بھی جلد کر لیے جائیں گے۔ ان کی کاوشوں سے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی۔ آج مظفر گڑھ میں ایک نئے جوڈیشل کمپلیکس کی بنیاد رکھ کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس منصوبے کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ میری کوشش کے ذریعے حکومت پنجاب نے تقریباً 25 کروڑ روپیہ پورے پنجاب کی بار ایسوسی ایشنز کو گرانٹ کے لیے
मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब के खित्ते से ज्यादा लोग अदलिया में आएं। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ मियां अब्दुल रहमान बोदला, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जाम मोहम्मद यूनुस और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अरशद हुसैन भट्टी एडवोकेट ने भी खिताब किया। कैमरामैन उस्मान नवाज के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। तलबा कमर कस लें, कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने की तजवीज। 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश। 4 फरवरी से मिडिल ता इंटर क्लासेस को शुरू किया जाएगा। 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज खोलने पर गौर फिक्र जारी है। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते और जून के इब्तिदा में लेने की तजवीज। हतमी फैसला 4 जनवरी को बैन सूबाई वज़राए तालीम इजलास में होगा। कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने की तजवीज ज़ेर गौर है। 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की गई। 4 फरवरी से मिडिल ता इंटरमीडिएट क्लासेस को शुरू किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज खोलने पर भी गौर किया जा रहा है। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में और जून के इब्तिदा में लेने की तजवीज। हतमी फैसला 4 जनवरी को बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। पीडीएम रैली की बात करेंगे। मुल्तान के बाद पीडीएम क़यादत बहावलपुर में पावर शो के लिए तैयार। कल नवाबों के शहर में रैली निकाली जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज समेत पीडीएम की आदत शिरकत करेगी। रैली के हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के बाद पीडीएम क़यादत बहावलपुर में पावर शो के लिए तैयार है। कल नवाबों के शहर में रैली निकाली जाएगी। रैली में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज समेत पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान काफिले की सूरत में मुल्तान से बहावलपुर पहुंचेंगे। मरीम नवाज की आमद पर ऊंट कुर्बान करने का फैसला। लीगी एमपीए मलिक जहीर इकबाल की रिहाइशगाह पर कुर्बानी का ऊंट सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला बहावलपुर बाईपास से रवाना होगा। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद पार्टी सेक्रेटेरिएट से काफिला लेकर निकलेंगे। मुल्तान से भी अपोजिशन रहनुमा रैलियों की क़यादत करते हुए बहावलपुर पहुंचेंगे। कारकुनान ने बहावलपुर के रैली को तारीखी बनाने के अज़्म का इजहार किया है। कोरोना फजा में पीडीएम को रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला इंतजामिया का रैली की इजाजत न देने का फैसला। मकामी लीडर्स को जलसे के इनेकाद न करने के नोटिस जारी कर दिए गए। रैली से पहले ही पीडीएम के मकामी कायदीन की गिरफ्तारियां। थाना बगदाद पुलिस ने लीगी कारकुन वसीम कुरैशी को धर लिया। आपको बताते चलें कि थाना वसीम कुरैशी को धर लिया गया है। कोरोना की फजा के अंदर पीडीएम की क़यादत को रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला इंतजामिया का ऐसा कहना है। जिला इंतजामिया का इजाजत न देने का फैसला। नवाबों के शहर में सियासी पारा हाई हो गया। बहावलपुर सियासत का मरकज बन गया। पीडीएम कल बहावलपुर में रैली निकालेगी। बहावलपुर में जिला इंतजामिया का रैली की इजाजत न देने का फैसला। कोरोना फजा में पीडीएम को रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। मकामी लीडर को जलसे का इनेकाद न करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतहा। रैली को रोकने के लिए कंटेनर की पकड़ धकड़। दर्जनों कंटेनर को ड्रंक स्टेडियम के तरफ पहुंचा दिया गया। शहर में लगी पीडीएम रैली के पैनाफ्लेक्सेस भी उतार दिए गए। रैली से पहले ही पीडीएम की मकामी कायदीन की गिरफ्तारियां। थाना बगदाद पुलिस ने लीगी कारकुन वसीम कुरैशी को धर लिया। वसीम कुरैशी ने पीडीएम के पैनाफ्लेक्स उतारने की वीडियो वायरल की थी। साबिक मेयर अकील नजम हाशमी, तनवीर अशरफ रामी, मौलाना अब्दुल्ला, गुलाम यासीन सिद्दीकी, असलम रहमानी के खिलाफ कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बहावलपुर में पीडीएम के मकामी कायदीन ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद कल हर सूरत रैली निकालने का फैसला कर लिया। तफसीलात देखिए तैयब की इस रिपोर्ट पे। में इंतजामिया की जानिब से पीडीएम की रैली निकालने की इजाजत न मिलने पर ब्लीग हाउस में तमाम पीडीएम कायदीन इकट्ठे हुए और अहम फैसले किए गए हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मियां ब्लीगुर रहमान ने कहा है कि रहीम यार खान से लेकर बहावल नगर तक तमाम वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए, जो काबिले मजम्मत हैं। फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। रहीम यार खान से लेकर बहावल नगर तक एक बड़ी तादाद में वर्कर्स के घरों में छापे मारे गए। कुछ जगहों पे गिरफ्तारियां, क्योंकि हम पहले से ही चौकन्ना थे वर्कर्स कि ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे गिरफ्तारियां हुई हैं। रहीम यार खान, बहावलपुर, जमीयत और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पीडीएम की तमाम क़यादत बहावलपुर आएगी। ये तहरीक गरीब की रोटी के लिए है। हमारा एहतियाज है, हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में जो है वो उसको आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। और वो जो चोरी आपने 2018 के इलेक्शन में की है, उसको उस वक्त मान लिया गया था। अब 2.5 साल हो गए हैं, आप कुली तौर पे फेल हो गए हैं। फिर आप बजाते खुद इस बात को मानते हैं
تو اب कौन सी वो ऐसी बात है कि आपको रहने दिया जाए। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि गिरफ्तारियों के डर से कारकुन घरों में नहीं बैठेंगे, रैली हर सूरत होगी। मरकजी क़यादत के पीछे कारकुनान आएंगे। कैमरामैन सुकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। शहर औलिया के बच्चों की बेहतर सेहत के लिए एहसन इक़दाम। मुल्तान मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तामीर का PC1 तैयार। महकमा सेहत मुल्तान ने PC1 महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को भिजवा दिया। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का कयाम कला मंडी के करीब तामीर होगा। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से PC1 महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का कयाम कला मंडी के करीब किया जाएगा। अस्पताल 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने कहा कि नए अस्पताल के कयाम से मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि PC1 की अप्रूवल और बजट रिलीज होने के बाद काम का आगाज कर दिया जाएगा। फूड डिपार्टमेंट इससे कबल सभी महकमा सेहत के नाम कर चुका है। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान के अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तरक्याती मंसूबों का इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियन अरकान असम्बली से तरक्याती कामों की तजावीज तलब की गई। आजम का मुतवक्के दौरा मुल्तान के हवाले से मुल्तान तरक्याती पैकेज की तैयारियां शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक समेत अरकान सूबाई असम्बली और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और बन जाए, क्योंकि ये बड़ी आबादी वाला शहर है और रिक्वायरमेंट भी है। इस तरह हमारी IT यूनिवर्सिटी का एक हमने सिचुएशन यहाँ पे दी है। तीसरा, हमारे जो सीवरेज के मसाइल हैं मुल्तान के, जो पूरा आधे से ज्यादा मुल्तान डूबा रहता है, वो मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज का हम वो भी चाह रहे हैं कि एक सीवरेज यहाँ पर हो जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टा का कहना था कि शहर में सीवरेज और सड़कों की तामीर समेत कई मंसूबे शामिल किए जाएंगे, जिनमें हेड मोहम्मद वाला रोड की कशादगी का मंसूबा शामिल है। तमाम अरकान असम्बली से 5 बड़ी स्कीमें तलब की गई हैं। मुल्तान पैकेज के हवाले से भी हमने डिस्कशन की और जो हमने मंडियां शिफ्ट करनी है बाहर, चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे, उस पर भी बातचीत हुई और बाकी जनरल जो हमारी डेवलपमेंट का प्रोफाइल है वो सारा डिस्कस हुआ है। इजलास में वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, MPA वासिफ रां, MPA सबीन गुल समेत दीगर अरकान असम्बली ने हल्के के मसाइल और तरक्याती स्कीमों की तजावीज से आगाह किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। DC आमिर खट्टक कहते हैं मुल्तान में किसी रवायती भट्टे को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिगजैग के मुतबादिल टेक्नोलॉजी को कबूल करने बारे कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टों को चलाने की इजाजत दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक से भट्टा एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की, जिसमें ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, AC आदना फरीद और मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि मोबाइल लैब ने मुतबादिल टेक्नोलॉजी के हामिल एक भट्टे के सैंपल हासिल कर लिए। मुतबादिल टेक्नोलॉजी की लैब रिपोर्ट का इंतजार है। हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बगैर किसी मुतबादिल टेक्नोलॉजी को कबूल नहीं किया जाएगा। सेहत की सहूलियात की बात करेंगे। सरगोदा में हुकूमत के सेहत की सहूलियात फराहमी के दावे। डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल की CT स्कैन मशीन 3 डोज से खराब है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के बुलंदो बांग दावे खोखले निकले। सरगोदा डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल की CT स्कैन मशीन खराब हो गई। वाहिद CT स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब होने के बायस शहरी खबार होने लगे। मीलों सफर करके इमरजेंसी की सूरत में आने वाले शहरियों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जाने लगा। गरीब शहरी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में CT स्कैन के 10 से 15 हजार नहीं दे सकते। कम तो ही बच्चे बजना, चलो ऑपरेशन हो वंदा था गुआ पड़ा कम भी रहे, पर गरीब बंदे हैं बाहर तक सिवानी की दाई ना सकते। मेरे वालिद साहब को डॉक्टरों ने स्किन के बारे में बताया, हम इधर स्किन करवाने आए हैं तो ये कह रहे हैं जी हमारे पास तो मशीन खराब है। MSDHQ गुलाम शबीर ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट और समाही सर्विस के बायस CT स्कैन मशीन बंद है। 2 से 3 रोज में फाल कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी के बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल में वाहिद CT स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब पड़ी है, जबकि शहरी मीलों सफर करके यहां पर आकर ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा।
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خرنوش کی فراہمی مکمل طور پر یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ پل 14 پر قائم یوٹیلٹی سٹور پر گزشتہ 15 روز سے آٹا بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جہانیہ میں یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی قلت ہے۔ پل 14 پر قائم یوٹیلیٹی سٹور پر گزشتہ 15 روز سے آٹا دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے غریب طبقہ پریشان ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پر سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی اور نہ ہی اشیاء کی مکمل ورائٹی دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھی یا چینی کی خریداری پر صابن، سرف یا دیگر اشیاء کی خریداری بھی شرط ہے، ورنہ گھی چینی نہیں دیا جاتا۔ کہ وہ چینی دے دیو جناب، انہوں نے مینوں نہیں دیتی، میرے ہوندیاں ہی دوسرا بندہ آیا، انہوں گھیو بھی دے دیتا، چینی بھی دے دیتی گئی، دوسرا سودا انہوں نہیں دیتا۔ تو میں آخیا مینوں میری بھی ریکویسٹ ہے، مینوں بھی دیو جی۔ آخر نہیں جی اسی نہیں دے سکتے، کوئی ہور سودا نال خریدو۔ شہری کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس دوسری اشیاء کی خریداری کے لیے رقم موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ ایک آدمی کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے پاس صرف گنجائش یہ ہے کہ میں نے چینی اور گھی لینا ہے، اور دوسری چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو یہ اس کے اوپر شرط لگا کر اس غریب آدمی کو نہیں دیتا۔ ہم جائیں یا دوسرا جائے، کوئی بھی جائے، کسی کو یہ چیز جو ہے نا ضرورت کے مطابق نہیں دیتا۔ اس معاملے پر سٹور انچارج شہباز نے بتایا کہ جو سامان سٹور پر موجود ہے وہ گاہکوں کو دیا جا رہا ہے۔ ہم جو سامان ہمارے پاس پڑا ہے وہ سب اویلیبل ہے، آپ کے سامنے پڑا ہے، جو اسٹاک بھی پڑا ہے سب انشاءاللہ عوام کو مل رہا ہے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹور حکام سے اشیاء کی قلت اور فراہمی نہ ہونے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماجد اسلم، روہی، جہانیہ۔ رحیمہ خان کے قبرستانوں اور جنازہ گاہوں کو صاف ستھرا کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے نے قبرستانوں سے نکاسیاب اور گھاس جڑی بوٹیوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے عاصم صدیق۔ خان کے قبرستانوں اور جنازہ گاہوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشن نے گرینڈ آپریشن کیا، جبکہ 111 بھی غریبی میں موجود قبرستان میں صفائی کی گئی۔ مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تعاون سے ہیوی مشینری کا استعمال کر کے قبرستان کے راستے کو صاف کیا گیا، جھاڑیوں اور جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کیا گیا اور نکاسی آب کا کام بھی کیا گیا۔ صفائی کے کام کی نگرانی تحریک انصاف کے رہنما فاروق وڑائچ اور میونسپل آفیسر عظمت قدیر قرایا نے کی۔ ہمارے رائل بشیر گارڈن سے گلزار ڈلو صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اپنا ٹریکٹر بھیجیں، اور یہ ساری آگے جو روڈ ہے اس کو ہم نے پارکنگ کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں، اور اندر سے صفائی بھی کروائی ہے اور پودے وغیرہ کے بھی ٹھیک کر رہے ہیں سارے۔ آج ہم نے شہر کے مختلف جو قبرستان ہیں ان کا وزٹ کیا ہے، اور جس قبرستان کے اندر جنازہ گاہ موجود ہیں ان کی صفائی، اور ڈینگی کے حوالے سے اگر قبرستان کے اندر لوگ پانی وغیرہ رکھ جاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو تو اس کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحیمیہ خان میں قبرستانوں کو صاف ستھرا بنانے کے ساتھ ساتھ پارکنگ کے لیے بھی جگہ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق لیا میں فیصل اصغر ٹرسٹ کے زیر اہتمام لنگر خانے کا آغاز۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی، MNA ملک نیاز جکھڑ، ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء، DPO سید ندیم عباس اور علی اصغر گرمانی نے لنگر خانے کا افتتاح کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیصل اصغر ٹرسٹ کے زیر اہتمام لنگر خانہ شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت کھولے گئے لنگر خانے کا افتتاح معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی نے کیا ہے۔ فیصل اصغر ٹرسٹ کے بانی علی اصغر گرمانی نے کہا کہ لنگر خانے میں 500 سے زائد شہری کھانا کھا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سب سے پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں، جو مساکینوں کا، غریبوں کا، اصل تو اس چیز پہ عمل پیرا ہے، اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یہ پاکستان کے، ان کا بھی یہی ویژن ہے۔ یہ جو ان کا ایک کہنا ہے نا کہ ریاست مدینہ، تو جو تنقید کرنے والے کہتے ہیں نا تو کیسے بنے گی، تو یہ ریاست مدینہ صرف ایک شخص نے نہیں بنانی ہوتی، یہ ہم سب لوگوں نے مل کے یہ اسی ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے ہم سب کا، اپنی چھوٹی سی ریاست۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی نے کہا کہ مخیر حضرات کو لنگر خانے کھولنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں علی اصغر گرمانی صاحب کا، جن کی یہ خصوصی کاوش ہے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں، DC لیا کا شکر گزار ہوں، ہمارے پارلیمنٹرینز بھی آج موجود ہیں۔ تو اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح میرے بھائی نے کہا یہ ریاست مدینہ کی طرف ہمارا ایک قدم ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے دوسرے دوست بھی موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے کہا کہ مدینے کی ریاست کے نظریے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ جی میں تو شکر گزار ہوں علی اصغر گرمانی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری جو ہمبل سی تجویز تھی اس کو اون کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ سننے والے تو بے شمار ہوتے ہیں، کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس کو اون کیا، اور یہ لنگر خانہ انہوں نے اپنی ذاتی زمین پر اپنے ذاتی خرچے سے بنایا۔ اس پر 500 سے 600 لوگ اس پہ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع لیا میں ریاست مدینہ کی طرف بنانے کے حوالے سے یہ ایک بڑا میجر اور اہم قدم ہے۔
MPA शहाबुद्दीन ने लिया में लंगर खाने के कयाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया, DPO नदीम अब्बास और मेंबरान असम्बली ने मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया। हुकूमत पंजाब ने सूरजमुखी की काश्त पर रवा सीजन के लिए 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। तर्जमान महकमा ज़राअत अब्दुस समद का कहना है कि सूरजमुखी की फी एकड़ बीज की खरीदारी पर 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पंजाब भर में रवा साल 2,10,000 एकड़ पर सूरजमुखी का काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि सिर्फ मुल्तान डिवीजन में 39,000 एकड़ पर सूरजमुखी की काश्त का हदफ है। सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार जो है वो सब्सिडी से फायदा हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर सूरजमुखी काश्त करें। इससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि जो दरामदी बिल है उसमें भी कमी वाकई हासिल होगी। गुज़िश्ता 3 सालों में पंजाब भर में सूरजमुखी की काश्त का हदफ पूरा नहीं हुआ। महकमा ज़राअत का कहना है कि जनूबी पंजाब में सूरजमुखी काश्त का वक्त शुरू हो चुका है। अगर काश्त बर वक्त कर ली जाए तो न सिर्फ इसकी पैदावार बेहतर होती है बल्कि बीज से तेल की मिकदार भी पूरी हासिल की जा सकती है। सूरजमुखी पाकिस्तान की एक अहम तरीन तेलदार फसल है। इसके बीज में अला क्वालिटी का खाद्य तेल पाया जाता है। सूरजमुखी से बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए इसके मौजूद तरीन वक्त पे काश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ताखीर से काश्त करेंगे इसकी न सिर्फ फी एकड़ पैदावार में कमी होगी बल्कि इसका जो तेल है उसमें भी कमी वाकई होती है। तर्जमान के मुताबिक सूरजमुखी के बीज के हर थैले में 5,000 रुपए के सब्सिडी वाउचर मौजूद हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अतर लशारी, मुल्तान। महकमा ज़राअत की बात करेंगे। महकमा ज़राअत तौसीक के माहिरीन का काश्तकारों को गंदम की फसल को पहले पानी के बाद अच्छी मैनेजमेंट से बेहतर करने की हिदायत। गंदम के लिए गैर जरूरी तौर पर यूरिया का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। अहम तरीन ज़राई फसल गंदम की बेहतर मैनेजमेंट करके इससे ज्यादा मिकदार हासिल की जा सकती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शेख यूसुफ रहमान का कहना था कि पहली अबपाशी के बाद गंदम की फसल में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का हमला ज्यादा हो गया है। काश्तकारों को चाहिए कि जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारुक करें ताकि पैदावार मुतासिर न हो। हमने अगर भरपूर पैदावार लेनी है तो जड़ी बूटी का कंट्रोल भी आएगा और मुतनासिब खादों का इस्तेमाल भी आएगा पानी के साथ ना। रकबे की जरखेजी और उसके टेक्सचर को मद्देनजर रखते हुए खादों का इस्तेमाल जो है ना वो ज़राई कारकुनों के मशवरे से करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की फसल से जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए हुकूमत मखसूस ज़राई अद्वियात पर 250 रुपए फी एकड़ पर सब्सिडी फराम कर रही है। माहिरीन ने काश्तकारों को हदायत की है कि खादों का इस्तेमाल महकमा ज़राअत के अमले की मशावरत से करें। यूरिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करें। पानी लगाने के बाद बतर हालत में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है ना वो लाजिम करें और जड़ी बूटियों की जो भी वीडिसाइड्स अवेलेबल है मार्केट में सिलेक्टिव के ऊपर जो है ना 250 रुपए सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की तरफ से ना। काश्तकार गंदम की फसल से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की तजावीज पर अमल करते हुए इसकी मैनेजमेंट बेहतर बनाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अतर लशारी, मुल्तान। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए एहतमाम होने वाले फर्स्ट कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम का कहना है कि मर्दों की टीमों के चुनाव के लिए एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पिट, आर्चरी और बैडमिंटन के ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि खवातीन के लिए एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पिट, आर्चरी और साइकिलिंग, टेनिस के ट्रायल्स मरियम हॉल विमेन स्पोर्ट्स ग्राउंड बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कल होंगे। कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन चैंपियनशिप्स हैं, इसमें 5 गेम्स रखी हैं इन्होंने, जिसमें एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बैडमिंटन है और साइकिलिंग है, टेनिस है। तो इसके लिए हमने चूंकि टीमों को फॉर्मुलेट करना है तो आज हमने 2 दिनों में ट्रायल रखे हुए हैं। तो आज हमारे ट्रायल चल रहे हैं और इसमें हमने बिल्कुल जो हमारी न्यूट्रल जो सिलेक्शन कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। इंटरनेशनल ओलंपियन अब्दुल रशीद का कहना था कि कोविड के 22 तमाम एथलेटिक्स घरों में बैठे रहे। ट्रायल्स के लिए भी बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है। कोविड-19 की वजह से सारे एथलीट्स घरों में बैठे हुए हैं, कोई मकसद फुल पीक पे कोई प्लेयर भी नहीं है। ये एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये आगाही दी गई कि ये ट्रायल्स हैं, तो चूंकि आज हम ट्रायल्स ले रहे हैं, लड़के अच्छे हैं माशाल्लाह, फ्यूचर के लिए भी अच्छे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है कि जो लड़के हम सिलेक्ट करेंगे वो मुल्तान डिवीजन का नाम रोशन करेंगे। मुल्तान से 64 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल मुल्तान डिवीजन का दस्ता 5 जनवरी को फर्स्ट कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए लाहौर रवाना होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।